नमस्कार, আমি अनुभव सापरा। आज हम लोग नॉर्थ कलकत्ता आए हैं। अभी थोड़ी देर में हमें पैमिला ज्वाइन करने वाली हैं, जो हमें यहाँ के फूड टूर पे ले जाएंगी। आइए हमारे साथ। हेलो। Hi. हाय। Today we're going to have a very typical Bengali start to the morning, which is with mishti, and that too the sweet that Calcutta is known for, which is Rasgulla. We're going to go to one of the oldest sweet shops in the city, Chittaranjan Mishtanna Bhandar, and we are in North Calcutta. And this shop has no other branches. This is the only branch, and they've been making sweets for almost 100 years. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से सर्व करते हैं। प्याले में, मिट्टी के प्याले में। इसको आप लोग भाट कहते हैं। भाट कहते हैं। We use the bhar for cha as well as मिष्टी दोई। mishti doi. Yes, mishti doi and mishti. Flavor ज़्यादा आता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस शॉप के बारे में थोड़ा बताएं। So this shop is around 100 years old. It was established in 1907, and this is the only shop. It does not have any other branches throughout Calcutta. Like for instance, KC Das has started coming up with a lot of branches, but this is the only shop, and it's been run by again family. Okay. So like many other sweet shops you will see, it's been passed down from one generation to the other. तो इसमें होता क्या है? मेनली सिर्फ छेना है। Chena, and then you dip it in sugar syrup. बहुत ही उम्दा, बिल्कुल प्योर छेना। तो जो चाशनी है ये गाढ़ी नहीं है, बिल्कुल रनी है, और इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं है। मतलब इसका जो चाशनी है वो ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा है छेने को। साथ में जो रसगुल्ला है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब वार्म भी है, फ्रेश भी है, और बिल्कुल जाके मेल्ट इन माउथ, मुँह जाके घुल जाता है। तो लगता है वही रसगुल्ला को रसगुल्ला बनाता है यहाँ का। Historically, we did not have chena because chena came with the Portuguese in the 1700s. So chena ke pehle, the people from Bengal and West Bengal, they used to make sweets from just shakkar, doodh, aise karke. Lekin even in scriptures back in 13th, 14th centuries, you will see that whenever there was a feast, there was always mithai, like some of the other mithai. So historically, Bengal has always been a sweet region. And after the Portuguese came, and after especially Rasgulla was invented by KC Das and Nobin Chandra Das, very famously. So after that, there was like a growth of chena-based sweets. We have Sandesh, obviously the famous Sandesh. Now all of these are made with chena, which came with the Portuguese. And especially during the 18th to 19th century, a lot of mithai walas came from the districts of like Hooghly and other surrounding districts to come to Calcutta, establish their shops, and then they started selling sweets because it was very popular among the upper Bengali castes. So that's how like Calcutta, I think, and over the years the mithai walas have started innovating as well. So for instance, they've put chocolate, they've tried with different color syrups. You know, they keep innovating. That's one of the things about Calcutta, that you will never find only one kind of mishti. There is something for everyone. अभी हम जा रहे हैं शोभा बाजार राजबाड़ी की तरफ। तो ये पूरा जो लेन है, दिस इज़ ओन बाय वन रॉयल फैमिली, वो ज़मींदार्स लाइक जो होते थे। तो ये सबसे बड़ा जो बेटा है उनका मतलब राजबाड़ी है। और शोभा बाजार राजबाड़ी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन बिकॉज कैलकटा में जो फैमिली जो दुर्गा पूजा है उन्होंने स्टार्ट की थी, मतलब इस घर से स्टार्ट हुआ था। कुमारटूली जाएंगे, विच इज़ द पॉटर्स कॉलोनी। वहाँ पे कुमार का जो कॉलोनी है, तो वो दुर्गा पूजा या फिर सालों भर जब भी पूजा होते हैं, तो द आइडल्स कम फ्रॉम कुमारटूली प्राइमरीली। तो यू विल सी ऑल दीज आर्टिजन्स, वर्कर्स, कुम्हार्स मेकिंग जायंट दुर्गा आइडल्स या फिर सरस्वती, जो भी पूजा का बड़ा बड़ा आइडल्स। तो यहाँ से बहुत सारी दुर्गा पूजा की मतलब राजबाड़ी जो हम गए थे ना शोभा बाजार,
वहाँ से यहाँ से भी बहुत सारे आइडल्स वहाँ पे आते हैं, तो इसलिए तो अभी सरस्वती पूजा आने वाला है तो हाँ, सरस्वती माता की हाँ, मूर्ति बना रहे होंगे हाँ। वो। ये बचपन में बहुत खेला है, अब तो भूल गया हूँ, ऐसे ट्राई करता हूँ। भूले नहीं है। দুটো রাধা বল্লভী আর দু piece। হ্যাঁ 2 পিস। आलू दम, राधा बल्लभी, हाँ राधा बल्लभी। मिष्टी दोई एंड देन छोला दाल। सो ये टिपिकल ब्रेकफास्ट है, हाँ लोकल ब्रेकफास्ट है, बंगाली ब्रेकफास्ट यू कैन Yeah. कॉल इट। एंड ये राधा बल्लभी दाल स्टफ पूरी है, हाँ काफ़ी लाइट लग रही very है, light. वेरी Yeah, लाइट। yeah, yeah. This is why I love this place because they make the lightest radha ballabis. So you don't feel heavy after eating say 2 or 3 of them. अच्छा, और साथ में ये मैदे का ही बनता है, हाँ मैंने कहा मैदे, और ये मिष्टी दही है जो मीठी दही, साथ में ये छोला दाल मतलब चना दाल। हाँ चना का दाल lightly spiced. ये मिष्टी दही बनाने का तरीका क्या है, मतलब कैसे बनाया जाता है? तो शक्कर डाल के दही को जमाते हैं? I think I don't know the exact way of making it because I've never seen it being prepared, but I think every place has its own way of making it. क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे ये मिष्टी दही सफ़ेद ज़्यादा सफ़ेद लग रही जी है जी। तो इसमें वो जो शुगर जो डालते हैं उसको मतलब गुड़ नहीं डालते हैं इसमें सिर्फ चीनी है। किसी दुकानों में मिष्टी दही गुड़ से बनती है तो उसका कलर डिफरेंट आता है। ब्राउन हाँ होता है। तो और इसमें इफ यू ईट दिस मिष्टी दही इट्स नॉट टू स्वीट, इट्स नॉट लाइक मतलब ओवरली स्वीट, इट्स स्टिल अ लिटिल मोर बैलेंस्ड देन व्हाट यू विल फाइंड एट अदर प्लेसेस। So every place has their own recipe of making. No. वो जस्ट प्लेन दाल। Plain dal with, you can see little काला जीरा, हाँ हाँ। फिर जीरा यहाँ पे, salt, pepper. No, pepper you can taste. A bit on a sweeter side, थोड़ा मीठा है। Yeah, exactly. Bengali breakfast tend to be usually a little bit on the sweeter side, and even if you're suppose having puri and aloo dum, we always usually have one sweet with the breakfast. So be it dahi, be it Rasgulla. Rasgulla, exactly. Be it Rasgulla, be it mishti. So Bengali breakfast is known for being a little on the sweeter side. So this kutira is over 100 years old. और जो रेलवे चीफ मिनिस्टर रेलवे का जो ऑफिसर था, ब्रिटिश रेलवे ऑफिसर, उनके लिए खाना यहाँ से लिया जाता है। और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं दे आर मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, लोकल्स, एंड बिकॉज दिस इज ओवर 100 years old, यहाँ के बहुत लॉयल कस्टमर्स हैं जो मतलब जनरेशन वाइज दादा पड़ता यहाँ पे आते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है राधा बल्लभी दाल स्टफ पूरी और छोला दाल का, ये पूरे दिन मिलता है, मॉर्निंग से लेकर नाइट? ये राधा बल्लभी 11 बजे से लेके मिलता है, उसके पहले सिर्फ कचौरी मिलता है राधा बल्लभी। अच्छा। ये 11 बजे के बाद राधा बल्लभी दाल और आलू दम। The way we prepare aloo dum is it's almost like a meaty texture and meaty taste. धन्यवाद। अच्छा, ये कचड़ी है क्या? इसको बिहार में कचड़ी बोलते हैं। और ये क्या है? आलू आलू दाल और ये मिर्च।
चटनी दीजिए, बहुत बढ़िया। बिहार में लोग शाम के टाइम पे मूढ़ी के साथ या चूड़ा के साथ, चूड़ा हल्का भून लिया उसके साथ नाश्ते में खाते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट है। दाल को मिक्स करके बनाया जाता है और सरसों के तेल में फ्राई करते हैं। चलिए, धन्यवाद रंजन जी। अभी तो स्पाइसी पकौड़े खा ले, तो अभी ठंडा शरबत पी लेंगे। सो वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ पैरामाउंट व्हिच इज अगेन 100 years old, एंड यहाँ पे हम लोग डाब का शरबत पियेंगे और इमली का शरबत। इमली का शरबत। इमली का शरबत। Since 1918, Since 1918. more than 100 years old shop. More than 100. So this shop used to be originally down the street और उसका नाम था Paradise. लेकिन क्या हुआ? So during the nationalist movement, there were a lot of raids when the government would try to come in and because the nationalists were plotting against the British government, right? So the nationalists would try to come in and there were raids. So which is why that shop had to close down. So they set up this shop and called it Paramount, so that the government does not suspect and conduct further raids. अच्छा, लेकिन बस इनका शुरुआत में इनका नाम पैराडाइज था। Paradise था। उसके बाद it literally moved down the street. It then established itself as The renamed Paramount. Renamed Paramount. और वो जो आप देख रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ जी। so वहाँ से मतलब गली एक रास्ता जाता है जहाँ पे so the leaders when they were plotting and planning, and the British used to there were raids in here. They used to actually, the owner would sit here and they would give them a warning that people are coming, run. वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से निकल जाते हैं। वेरी रिफ्रेशिंग। हमने दो तरीके का लिया है, एक डाब शरबत है, इसका पूरा हमने प्रोसेस देखा कैसे बनाया जाता है। डाब का पानी, जो नारियल का पानी है वो निकाल के उसके बाद फिर उसकी मलाई निकाली जाती है, फिर मलाई डालते हैं, डाब डालते हैं, थोड़ी चाशनी डालते हैं, शुगर सिरप और थोड़ा सा कुछ एसेंस डालते हैं, वो पता नहीं क्या एसेंस है वो डालते हैं और फिर बर्फ़ के साथ मिला के मिक्स कर देते हैं। और ये जो टैमरिंड वाला है इमली का, इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाली है, जलजीरा भी डाला है और मसाला भी कुछ डाला है और साथ में शुगर सिरप भी है, टैमरिंड सिरप भी है, कुछ एक एसेंस भी डाला था उन्होंने और थोड़ा सा पानी मिला के फिर मिक्स करके बनाया है बर्फ़ के साथ। तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। मुझे लगता है कि कैलकाटा के ह्यूमिड वेदर में ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होता होगा। It's good. It's good. It's sweet, tangy. Tangy, yeah. It's really refreshing and flavorful. Which is why I always order these two at the same time. So this is like more on the mild side, and this is for people who really want that flavor punch. In the mouth. धन्यवाद। कैबिन का पार्टीशन था, लेकिन आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं तो वो एक डिश लेके बहुत सारे मतलब 1 घंटा 2 घंटा 45 मिनट 1 घंटा चला जाता है डिश लेके बैठ जाते हैं। ओरिजिनली जो फैमिली कस्टमर आता है खाने के लिए वो सीट नहीं मिलता, उनको सीट नहीं मिलता, इसलिए आपने ख़त्म कर दिया हाँ। पार्टीशन। पहले जो कपल था वाइफ वो आपका सामने कोई बाहर में नहीं खा सकता है। अच्छा। So like upper caste Hindu Bengali women, they would never want to eat in front of other men or eat in a public space. So cable used to allow them to give them a private space to eat without like people looking at her and watching me.
सो इसीलिए अच्छा। केबल्स मतलब थे पहले, सो दैट शी कुड सेफ्टी प्लेस। सब हाँ ये मैं देखा मैंने पहले, अभी भी बहुत सारे रेस्टोरेंट जो पुराने हैं वहाँ पे वो एक फैमिली सेक्शन होगा हाँ और एक ओपन सेक्शन होगा Open जहाँ सब लोग section, बैठ हाँ, सकते हाँ, हैं। तो तक केबिन का भी शुरुआत वैसे ही हुई जहाँ पे केबिन में क्लोज कंपार्टमेंट, क्लोज पार्टीशन प्लेस में सभी जहाँ बैठ के अपना प्रिवेसी में आप खाना खा सकते हैं। कौन सा फिश इस्तेमाल करते हैं इसमें? इसको जो भेटकी माछ है ना, जी भेटकी माछ का फिश होता है। भेटकी माछ का फिश फ्राई का ऊपर से कवरेज किया है अंडा को। तो इस डिश का नाम फिश कबीराजी क्यों पड़ा? कबीराजी मतलब कवरेज? एक्चुअल कॉमेडी नहीं होता है। पहले जो राइटर और लेखक आता था वो खाने के लिए बोला था चिकन कवरेज कटलेट। इससे बोलते बोलते बंगाली लोग कबीराजी बोल देता है। सुन दी है हाँ दैट्स काफी मस्टर्ड सॉस हाँ और साथ में ये फिश कबीराजी है, इसका देख सकते हैं। ये अंदर में भेटकी फिश है हाँ और ऊपर में एग का कवरेज, दोनों तरफ से बिल्कुल डीप फ्राइड और फ्लफ़ी, बट ऑयली। यू वेंट फॉर इट बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। जो इसका जो एक्सटीरियर कवरेज है वो बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट फिश, साथ में मस्टर्ड सॉस का अच्छा पंजन फ्लेवर जो होता है वो है। आपकी फेवरेट फिश कौन सी है? हिलसा मत बोलना। हिलसा ही है ना भेटकी Bhetki? and this other fish called armach, which is also white fish. It's got one bone. It's easy, so that's why I like it. मुझे रोहू बहुत पसंद है। रोहू also I like. That's very good for making curries. Like मेरे घर में तो रोहू फिश की करी तो everyday बनती है। अच्छा। हाँ तो इसीलिए भेटकी is something you make once or twice a week because it's a little bit more expensive and you make like the famous Bengali dishes like bhetki machir paturi and the mustard fish that Bengalis are known for. That's best with bhetki because it's a light white fish, right? So it really absorbs the flavor of the mustard. धन्यवाद। Thank See you you. again. See you. थैंक यू। मैं इतने सारे इंडियन कॉफ़ी हाउस में गया हूँ, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, हर एक लोकेशंस पे कहीं पे इन्फ्यूज़न नहीं पिया मैंने। ये ज़्यादातर यही सेम टाइप कॉफ़ी मिलती है, हॉट कॉफ़ी, ट्रे कॉफ़ी, कॉफ़ी क्रीम, कोल्ड कॉफ़ी, कॉफ़ी इन्फ्यूज़न मैं शायद इतना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, या उसका मेन्यू होगा मैंने कभी गौर नहीं किया। अच्छा तो ये सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी है। this is plain simple black coffee and you can put sugar if you want. हाँ हाँ। कॉफी हाउस बहुत पुराना है। सो इसका जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग करीब 1880 से ये बिल्डिंग, इसको बोला जाता था रॉयल एल्बर्ट हॉल, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग जी। इट लुक्स लाइक a ball or like a ball house or an opera hall. It's actually modeled after the Royal Albert Hall in England, in London. तो the idea is like आप अगर ऊपर बैठेंगे तो नीचे जो भी हो रहा है, पार्टीज जो ब्रिटिश थ्रो करते थे, the ladies would sit here upstairs and they could see what's happening like downstairs, and there would be dances and parties thrown in here. तो उसके बाद 1900s में ये building, the first coffee house was established here by the British. लेकिन तब इंडियंस या फिर नेटिव लोग यहाँ पे जो थे वो अलाउड नहीं थे। ये धीरे धीरे जब गवर्नमेंट चेंज हुआ उसके बाद इंडियन स्टार्टेड गेटिंग परमिशन टू कम टू कॉफ़ी हाउस, बट ड्यूरिंग द 1900s the coffee house was running out of money. They didn't have enough funds to sustain themselves. So then what happened that this very famous communist leader, he told the workers of the coffee house कि आप cooperative बना लो, take charge of the coffee house. So that's what they did. They started a cooperative और बॉम्बे में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर साउथ में हुआ, फिर यहाँ पे भी हो गया। So right now it's a cooperative society. और इस कॉफ़ी हाउस की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स से शुरू करके
I think some of the most well-known Bengali personalities have come here. And they have had their coffee. They used to study right here in Presidency University. So Netaji, of course. वो तो आए होंगे. वो तो आए होंगे यहाँ पे. So everybody, you know, they used to come here. They sit here and they adda लगाते थे. So adda again is very quintessentially coffee house. So you see like groups of people, as you can see, you know, sitting here talking, chatting, playing carom. So that's a very Bengali thing as well. Like I mean, adda तो सब जगह होता है, सारी दुनिया के मतलब होता है. But Bengalis के लिए अड्डा बहुत स्पेशल है क्योंकि मतलब 1900 से शुरू करके जब हम लोग अड्डा करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट गॉसिप, इट्स नॉट जस्ट चिट चैट. वी ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मतलब स्पेशली इन द 1900s जब एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हो रहा था तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स आके बात करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ लेकर. एंड इट यूज्ड टू बी लाइक people from every different class and every different background would come here, sit and talk. And you know, you get coffee and food at such cheap prices. So students, film artists, directors, everybody comes here and hangs out. और इनका जो मेन्यू है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ के लोकल पैलेट को ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया गया है. जैसे फ़िश कबीराजी देख रहा हूँ मैं, कटलेट्स हैं और सैंडविचेस हैं, ऑमलेट्स हैं. ज़्यादातर चाय अड्डा होते थे, ये कॉफ़ी अड्डा है एक तरह से. हाँ, exactly. क्योंकि जो when the British established coffee house, so coffee तो इंडिया में 16th century से they used to cultivate coffee. But the idea of coffee houses came up in England from Paris, from France, from French. So that spread to obviously Calcutta, क्योंकि Calcutta was the capital city of the British, right? The British Empire. So when the coffee house started, this became like the hub for पहले the upper class and the upper middle class Bengali intellectuals. उसके बाद धीरे धीरे as it became more accessible, more cheap, people from all different classes and backgrounds started coming here. बट यहाँ कोलकाता में ऐसा कॉफ़ी ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, मैंने देखा है स्ट्रीट्स पे. हम लोग बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे जो चाय वर्सेस लोगों का जो रेशियो है, ऐसा होगा 10 लोगों पे एक चाय की दुकान होगी यहाँ पे. हर एक जगह पे चाय की दुकान है. और नींबू चाय मतलब लेमन टी. ये टेबल है जहाँ पे नेताजी बैठा करते थे. हाँ, यहाँ पर कवि नजरुल और नेताजी बैठा करते थे. उन लोग गपशप मारते थे. यही जगह है. और यहाँ पर कवि नजरुल ने वो एक बंगाली सॉन्ग भी जब बारिश होते थे वो एक टेबल को तबला के हिसाब से बजाते बजाते एक गाना भी गाते थे. कौन सा गाना था? वो गाना था के विदेशी मोन उदासी. लाइक ये शुरुआत 1918 हुआ था. तो मेरा ग्रैंडफादर नूतन चंद्र बरुआ एंड हिज एल्डर ब्रदर गौरचंद्र बरुआ दोनों मिलकर ये एस्टैब्लिश चालू किया 1918 से. आपके यहाँ क्या क्या डिशेस मिलती हैं? यहाँ पर आपका बटर टोस्ट मिलेगा, आपका केक मिलेगा. केक 3 टाइप्स का केक मिलेगा. अभी पान केक जो आपने खाया वो बहुत फेमस है यहाँ पर. हाँ, कलकत्ता शहर में आपको मिलने वाला है नहीं जगह जगह में. अच्छा. ये यहाँ पर ही मिलते हैं. हाँ, और आपका स्लाइस केक मिलता है यहाँ पर और पैकेट केक मिलता है. डिफरेंट टाइप्स का फ्लेवर होता है. ये सब हम लोग के फैमिली रिलेटेड सब कोई. तो केबिन के 2 टाइमिंग्स हैं, मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून से लेकर नाइट. एक्चुअली हम लोग का फादर 3 ब्रदर्स. सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 6:30 मॉर्निंग इन 6:30 7 एंड टिल 10 o'clock. तो द फर्स्ट पार्ट का जो अर्निंग होता है वो उस ब्रदर को जाता है, सेकंड पार्ट का जो अर्निंग होता है वो आपके पास आता है, ऐसा है? हाँ, आफ्टर दैट वी गिव सम फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल एवरीथिंग शेयरिंग एंड सपोर्ट. तो जो मेन्यू है वो सेम है जो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में? सेम. वही केक, वही सप्लायर, वही सप्लाई, वही बनाने वाले.
बस ओनर चेंज हो जाते हैं। हाँ, होना चाहिए। देखिए पान केक क्या ना बोलो। इट्स हार्ट शेप, दैट्स ओह अच्छा। तो इसका शेप हार्ट शेप है इसलिए इसको वो पान पान जैसा है ना, उसका बिटल लीफ जो पान है जी, वो जी। उसका शेप जो हार्ट शेप है, इसीलिए वो पान केक बोलते हैं, हार्ट शेप। मतलब इतना ज़्यादा लोगों को अटैचमेंट है अपने 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 केबिन से, और हर एक केबिन की अपनी एक कहानी है कि वहाँ पे कौन आया करते थे, लोगों ने क्या रचनाएं की, लोगों ने क्या लिखा वहाँ पे। यहाँ कौन बैठा करते थे जहाँ मैं बैठा हूँ? जहाँ कोई नहीं। आप यहाँ बताइएगा, अनुभव सप्रा बैठा करते थे वो आके यहाँ पे चाय पीते थे। नहीं, यहाँ कैसा लगता है ऐसे समय रुक सा गया है। आपके लिए रुक गया है ना, किसी लोग के लिए वो नॉस्टैल्जिया जो जी आते हैं, जी जी, वो कॉलेज टाइम्स का ये फील करते यादें यादें जो होती हैं पूरे 1 घंटे के लिए बैठे बैठे फील करते थे वो क्या है, वो क्या है वो है। नहीं, मेरा अपना खुद का बचपन का फूड मेमोरीज है, मैं कहाँ खाने जाया करता था। हाँ। वो सब दुकानें हैं, कुछ होंगी नहीं होंगी पता नहीं, मुझे अभी जाके देखना होगा। चलिए सर, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।